ऐसा कुछ देखा है कभी? Yes. Yes, sir. Daniel sir. Cell. Daniel Yeah. Cell. देखो सब पता है, सब हो जाती है। ऐसा देखा है? Yes. Yes. तो अभी मैंने जो बोर्ड पे बनाया है, what I am showing you are the different types of batteries, are the different types of cells which we are using in our day to day life. हम लोग अपनी डे टू डे जिंदगी में ये सब यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है? आप टीवी का रिमोट बोलो, आप अच्छा एक और, मोबाइल का बैटरी। हाँ ये देखा है ऐसा कुछ? Yes. Yes. हाँ, Yes. yes sir. मतलब अभी लेटेस्ट फोन्स में तो खैर नहीं देख पाते हैं, बट पुराने फोन्स को पता है ओपन करके ऐसा बैटरी Yes. निकालते हैं। Yes, yes. Yes, sir. तो जब भी फोन हैंग होता तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू रिमूव द बैटरी, ऐसे थप 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 पीटते थे, लगा देते, फोन चलने लगता। Yes. So it was a very nice time, but अभी तो totally different ये है। तो भाई आपकी मोबाइल बैटरी हो गई, आपकी इन्वर्टर की बैटरीज हो गए, आपके कार के बैटरीज हो गए, ड्राई सेल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हो गए, डैनियल सेल्स हो गए, वोल्टाइक सेल्स हो गए, जैसे कि अपने क्लास के हीरो लोग बोल रहे हैं। देन टॉर्च में यूज करते हैं। देन यू आर यूजिंग इट इन जनरेटर्स। जनरेटर इज डिफरेंट ना, बट दिस इज डिफरेंट जनरेटर। बहुत बड़ा मशीन आता है, देखा है जनरेटर कभी शादियों में? Yes. Yes इधर sir. इधर वो Yeah. पेट्रोल या डीजल डालने के लिए रहता है, और ये आवाज बहुत खटाखट करती है, Yes. Yes. बेल्ट रहता है, ठीक है? फ्यूल डालते हैं। तो ये है। देन ऐसा कुछ देखना है, इलेक्ट्रिक पंप टाइप्स कुछ देखा है? गांव में गए हो कभी, खेतों में पंप वगैरह देखा है, ट्यूबवेल वगैरह देखा है? पंप। Yes sir. Yes. Yes, sir. No. ओके, ठीक है। सो मेनी एप्लीकेशन, कितना सब कुछ है इसमें। एंड आप लोग ने 10th में रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ा है? Yes. Yes. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके कुछ चीज सुनी है? Yes. Yes. बेटा वो शादी में या फिर किसी को गिफ्ट देना हो तो हम लोग चांदी की थाली और चांदी का चम्मच देते हैं, Yes. वो और Yes. चांदी रहता है बेटा, नहीं, उसके No. ऊपर कोटिंग लगा है। उसके ऊपर कोटिंग रहता है ना? Yes. अच्छा, Yes. मार्केट में आपको पता है ऐसा आता है कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, Yes. 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 which is Gold का पानी not the real gold, but it is a fancy gold. Yes sir. Yes, Then, sir. many other things, anodizing, किसी चीज को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कोई दूसरा मेटल का कोटिंग करते हैं। ये सब आपने एटलीस्ट सुना है? Yes. 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 आपने सुना है? All these things which are drawn on the board, Navita, they are a part of a branch of chemistry which we called as electrochemistry. Now, by the name it suggests, उसके नाम से ही वो suggest कर रहा है, there are going to be 2 parts in this. What are the 2 parts? एक is electric and the other is chemical. So electricity और chemical, बेटा आपको पता है electric energy is a type of energy Yes. Yes. and chemical energy is a type of energy. Energy. Yes. Yes. What have we learned in the law of conservation of energy? Energy can neither be Energy can created neither nor be created nor be created or not be destroyed. to another form. So I am very happy to see this Josh in the morning, but you know I was not well yesterday, right? Yes. 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 Do you know I have not recovered 100%? No, sir. Yes. I am still not well, but still I'm better than yesterday. So I'm standing in front of you because No. I do not want my students to miss out their studies. You know how much I care for you, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसे बोला कितने बेकार बच्चे हैं। Yes, yes, sir. मैं बोला. अच्छा, good. ठीक है. So yes, in this chapter, electrochemistry, one of the most important chapters and sadly the less marked chapter.
4 to 6 या 5 marks. 4 to 5 marks का चैप्टर है. As per me, this chapter, इस chapter का weightage ज्यादा होना चाहिए. You know why? Because see, I'm not scaring you guys, but I always tell the truth to you guys, right? So it is not a very easy chapter from concept point of view. तो कुछ concept समझने के लिए हमको थोड़ा time जाएगा. So we will go slowly with this chapter. I will not rush with it. ठीक है बेटा? I have chosen the board to teach it, not the video, because video में ठीक है, you can see things moving and all, but I am very sure आप लोगों को बहुत doubts आएंगे, and for that I needed the board, right? Because मैं video पे आपको बता नहीं पाता हूँ ठीक से doubts वगैरह. So 4 to 5 marks chapter, very important chapter. There are going to be numericals, there is going to be theory. इसका theory और numericals combined ही है. So overall इसके questions अच्छे आते हैं. Entrance point of view से बहुत important. तो अगर आप JEE CET वगैरह का ये कर रहे हो तो वो point of view से this chapter is very very important. You have to get the concepts clear, perfect. ठीक है? So this chapter will all deal with this interconversion. Electric energy to chemical energy to electrical energy. So energy can be converted from one form to the other. Even electric energy to chemical energy to electric energy. आपको ये दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसमें ये हो रहा है, electric energy is being converted to chemical energy. इसमें क्या हो रहा है पता है? Chemical energy is being converted to electric. Electric What is energy. more beneficial to us when we talk about applications? Chemical to electric. Absolutely, Chemical to absolutely. Chemical to electric conversion is better. Why? Because we have to find alternative sources for chemical energy. ये आपको पता है ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाला है. Yes. तो उसके Yes. अंदर ऐसा बैटरी होगा पता है? Yes. 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 तो आपको पता है वो चार्ज करना पड़ेगा. Yes. So there are two-way batteries. ये जो बैटरीज हैं और आपके घर में जो इन्वर्टर्स हैं वो are two ways. You are doing both electric energy to chemical and chemical energy to electric. तो जब आपके घर में लाइट आ रही होती है, प्रॉपर लाइट, गवर्नमेंट से लाइट आ रही होती है, that time electric energy is being converted to chemical energy and being stored in that machine. जब लाइट का फेज कट हो जाता है तब इन्वर्टर चालू होता है और उस टाइम पे the stored chemical energy is being converted to electric energy and your घर का बिजली बत्ती सब जलता है. Yes, sir. उसको डालना पड़ता है. क्या बेटा? उसको डालना पड़ता है, वो एसिड डालना पड़ता है. I'm talking about conversion. Obviously, उसका contents रहेगा. We will study about the contents. क्या उसके अंदर कौन सा lead ये रहेगा, batteries, blah blah blah. And those are a different aspect बेटा. उसके अंदर आपको पता है आपको distilled water भी डालना पड़ता है. आप normal पानी नहीं डालते. Yes. Distilled पानी खरीद करके you have to maintain the specific gravity. वो सब देखेंगे, ठीक है? बहुत दूर की बात है. अभी के लिए सिर्फ basic समझो. ठीक है guys? ये आपको क्लियर हुआ हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? Yes. ऐसी चीजें हम लोग ऐसी चीजों को डेप्थ में पढ़ने वाले, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनका कैसा काम आता है, सो ये सारी चीजें. तो दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग जर्नी. सो बिफोर गोइंग अहेड, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज कंडक्शन. ये कंडक्शन नाम की चीज क्या? I do not want the same guys speaking. I let others speak. If they are not speaking, I'm there to speak. But I do not want the same people speaking. I totally understand you are excited to participate and I really respect that. But maybe दूसरे लोग सोचते रहेंगे ये तो दे ही देगा तो मैं क्यों बोलूं? So let us give them a chance. ठीक है बेटा? They are sad because they are not getting the chance. Yes, conduction. Conduction is something which is related to the flow of चार्ज. बेटा मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली चार्ज बोला है. अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो मैं चार्ज की जगह कौन सा वर्ड यूज करता? Electron. Electrons. ठीक है. इससे पहले भी मैंने आपको जब भी कंडक्शन या कंडक्टिविटी का बताया था, आई यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहाँ पे in this chapter I am using the word charge. This charge can be in the form of electrons or in the form of ions
I'm very sure all my students now in the mid of 12th standard know what is the meaning of ions. Yes. 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 Yes, आपको sir. सिर्फ समझाने के लिए एक सबसे फेमस और पुराना एग्जांपल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड से। Na+Cl minus. तो ये आयन है और ये आयन, जब ऐसे बहुत सारे आयन्स चलने लग जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब करंट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। बेटा आपके बॉडी में करंट क्यों पास होता है? अब आप बोलोगे सर हम जब किसी ऑपोजिट जेंडर के बंदे को देखते हैं, सर बंदी को अपने देखते हैं तो बॉडी हमारे के अंदर भी आयंस body रहता है, आयंस सोडियम रहता है ना, आयन। इसलिए बॉडी में भी आयंस रहता है। बॉडी में आयन्स रहता है। कौन से आयन्स है बॉडी में? कैल्शियम, सोडियम आयन, सोडियम, सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। कैल्शियम, You know there are पोटेशियम है, some, there are कैल्शियम। okay, very good, calcium. ठीक है, there are electrons also inside your body. Yes. Yes. yes, आपको पता है आपके बॉडी में जो न्यूरल नेटवर्क है, जो आपके दिमाग से आपको सिग्नल देता है। अभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, न्यूरल नेटवर्क, अभी जो बच्चे हैं क्लास में उनके दिमाग की बत्ती जली, और ये न्यूरल नेटवर्क मतलब ये न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, मतलब ये ट्रांसमिटिंग की बात कर रहा है। तो ये सब पता है कौन करता है? वो न्यूरल नेटवर्क ही कर रहा है, आपको इंस्टिगेट करता है आपके बॉडी में। अभी अगर आप कोई गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो आप सोचते हो क्या हाथ हटाने से पहले आप तुरंत हटाते हो ना? Yes. How is that signal being transmitted in your body through electric signals? You know that? Yes, sir. Yes, yes. अच्छा, अभी जब आप किसी स्विच को हाथ लगा देते हो और वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है तो आप नाचने लगते हो बेटा? Yes. करंट लगा है कभी जिंदगी में किसी को? Yes. Yes. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो ये करंट हमारी बॉडी से क्यों पास होता है? बिकॉज आवर बॉडी इज अ लाइव कंडक्टर, यू नो दैट? Yes, Yes. sir. हमारे बॉडी को एक वोल्टेज होता है, तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स को इसको कनेक्ट करेंगे, दैट करंट विल पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड गो टू जीरो, गो टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सब Lower. जगह सर अगर ये पोटेंशियल होता है। सेम आप रहेगा बोलो। तो नहीं पास होगा। क्या बोल रहा है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो सब रहेगा पता तो है, सब सेम पता नहीं है। आएगा। पोटेंशियल मतलब करंट डिफरेंस, पास नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता ही होता है। ग्राउंड इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, okay, Zero. and all other sources are considered to be having some potential or higher potential than zero. अब आप ऐसे पोटेंशियल के कांटेक्ट में आओगे तो डेफिनेटली करंट पास होगा। अगर आपने रबर का चप्पल या फिर वुड या फिर इंसुलेटर किया है तो आपको करंट क्यों नहीं लगता है? कभी सोचा है? सर वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। वो सर्किट Because you are not in direct contact with the ground, so the circuit is broken. Yes, sir. Yes. अगर घर में ये लाइट जल रहा है बेटा, अगर वो लाइट का मैं बीच में से वायर काट दूं तो ये लाइट जलता रहेगा क्या? No. नो क्योंकि मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया है। ये बेटा आपने फिजिक्स में ऐसा कुछ देखा रहेगा? Yes. Circuit. सर्किट Yes. डायग्राम इसको क्या बोलते हैं पता है? Bulb. लोड। ठीक है, बल्ब है अभी ये, पर लोड सर बल्ब ऐसा नहीं होता, एम टाइप होता है, यस एम टाइप होता है वो। लोड। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तब आप इसको बल्ब बिल नहीं बोलोगे, आप इसको लोड बोलोगे। तो इसको डायरेक्टली ऐसे ना दिखा सकते फैंसी तरीके से, ऐसे डाल दोगे तो भी चले। ठीक है, देन यू शो समथिंग कॉल्ड, ठीक है, Resistance. रेजिस्टेंस ये क्या है? ये Key. this is the key के, what is this? This is the battery. Cell. बैटरी ये बेटा मैंने कुछ अलग बनाया क्या बोर्ड पे? No. नहीं आप लोग को पता है मैंने क्या बना रखा है बोर्ड पे? यस सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम। ये बेटा Yes. सर्किट डायग्राम, यस ठीक है। सो दिस इज when we talk about conduction, कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती कि नहीं आती? Yes. Yes. यस आती, बिल्कुल आती। जिसकी नहीं आती बेटा वो पढ़ाई किया करो, पक्का आएंगे। ये कंडक्शन में ना दो पार्ट्स, ये हमने सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया है। यस Yes. Yes, sir. आयोनिक कंडक्शन, तो भाई दो चीज होती है, अपने हो गए मेटालिक कंडक्शन,
मेटल्स। ये 10th में देखा रहेगा डायग्राम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है वो। Very good. When this is applied across a potential difference, these electrons will align themselves in a particular direction and start flowing from a higher potential to a lower potential. Yes sir. yes अच्छा. Why is this possible in metals? ये metallic conductors में metallic conduction possible क्यों है? Because Free electrons. Free electrons and कंडक्शन याद आ बैंड रहा है? वैलेंस बैंड ओवरलैप रहता है। Yes. मैंने पढ़ा है ये? conduction band. Yes, Yes, Sir, sir. पढ़ा है. मैंने पढ़ा है ना valence ये? band overlap. yes Yes. yes ये भाई लोग, ये मेटल्स के अंदर ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप ही नहीं होता है, वो ओवरलैप कर रहे हैं। अरे ओवरलैप कर रहे हैं और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक छोटी सी चिंगारी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके फ्लो करने के लिए मजबूर कर देगी। Yes. yes Yes. So this is why the metals are conducting. इसलिए यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है because of the flow of electrons. Yes, sir. Metals का positive coefficient temperature होता है ना? हाँ, क्या बोल रहे बेटा? Positive temperature of coefficient होता है ना metals का? कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर? Positive होता है ना इसका? अल्फा पॉजिटिव होता है। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव। You know what does this mean? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्शन इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ये तो पढ़ा है हम लोग ने उल्टा बचपन होता में। है सर। yes क्या बोल रहा है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल्स का कंडक्शन डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। स्टार्टिंग में इट इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस। Yes. देख बेटा ऐसा होता है। Yes, ऐसा ही होता है। Yes. इंक्रीज होगा, एक कांस्टेंट करेगा, डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। यू नो व्हाई? पहले एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और टूटेगा और जाएगा, बट जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो होल्स है वो वाइब्रेट करने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। Yes. यस ठीक है, अगर मेटल है तो उसको हीट करने से इसका एरिया भी बढ़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्शन। आपने 3 इडियट्स देखा है? Yes. yes No. सर नहीं देखा है सर मैंने। 3 इडियट्स नहीं देखा है बेटा तुमने? नो उसमें आमिर खान जब पहले दिन हॉस्टल में जाता है, आपने देखा है वो क्या स्टेटमेंट बोलता है? नो सर नहीं देखा। नहीं देखा। बाकी लोग ने देखा है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes. सो उसका सीनियर उसको ना बुली करने के लिए आता है। वो बोलता है कि तू बाहर आ और हम रैगिंग दे हम लोग। अभी तुम लोग को नहीं पता रैगिंग क्या होती है, ठीक है? तो पता तुम लोग पता है तुम लोग? पता है सर। तो जब मैं हॉस्टल पहली बार गया था तो हमारी भी रैगिंग हुई। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। सो योरगल की रैगिंग हो रही होती है एंड आमिर खान somehow finds his way to his room and he gets inside. वो अंदर चला जाता है और उसका सीनियर आता है, बोलता है कि तू बाहर निकल वरना I will trouble you. So he is like, if you do not come out of the door in the count of 10, I am going to pee on your door. Abhi, I use a very sophisticated word pee. I hope everybody understand what is the word of meaning of the word pee. yes नहीं किसको समझा। नहीं पता बेटा? नहीं पता, रैगिंग भी नहीं पता। रैगिंग मतलब क्या? अरे रैगिंग छोड़ रहे, पी पता है? पी सुसु। अच्छा समझा। Okay, yeah, I didn't want to use it, but तुमको नहीं समझा इसलिए। Fine. So what Amir Khan does is, वो एक चम्मच लेता है जो मेटल का होता है, वो उसको टाई करता है एक वुडन रॉड पे और उसके ऊपर लाइव वायर्स उसको कनेक्ट कर देता है। अब उसको वुडन रॉड पे क्यों करता है? बिकॉज उसको पकड़ना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली पकड़ेगा Yes. उसको करंट लगेगा। Yes. वो क्या करता है, वो उस रॉड को इस तरीके का एक रूलर रहता है और उसपे वो एक मेटल चम्मच ऐसा इसको बांध देता है और उसपे वायर बांध देता है। दिस वायर इज कनेक्टेड टू द बोर्ड स्विच। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से स्विच कनेक्ट करेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा और इस चम्मच में भी फ्लो होगा बेटा। Yes होगा। yes Yes. yes तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कंडक्ट ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बट इज दिस इज द पाथ, बट इज दिस सर्किट कंप्लीट बेटा? No. No. no
अगर इसको इस करंट को यहाँ पे कंप्लीट करना है, someone has to hold it and touch to the ground, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, करंट लगेगा। Yes. Yes. बट उसके बाहर जो सीनियर था वो उसको पकड़ने नहीं वाला था, वो क्या बोला, आई विल स्टैंड एंड आई विल पी ऑन दिस, आई विल पी ऑन Execute हो दिस। जाता है वो खुद को। Now when he is peeing on this, he is Circuit directly complete हो getting जाएगा। connected to the body. Yes. 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 Now how is that water, that's not water, how is that pee connecting to his body? Because that pee contains, Iron. Ions. ठीक है। अभी this current when flowing through a electrolyte, I will tell you the meaning of electrolyte very soon. When it flows through, when the current is passing through a electrolyte, the solution, बेटा अब ना सुसु is the solution only ना बेटा। Yes. अरे तुम लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया क्या लैबोरेटरी में? Yes sir. तो Yes, उसके अंदर No, आपने sir, रिपोर्ट no. देखा कभी, ये आयंस कम है, ये आयन ज्यादा है, Yes, yes. ये एनोलर, वो सब रिपोर्ट्स आता है, ठीक है। हाँ। So this current start flowing and इसको करंट लगता है और ये बेचारा बेहोश हो जाता है। So this is the very famous scene from Three Idiots, which applies that salt water solution is a good conductor of electricity. These are the words used by R Madhavan when he says. तो वो क्या बोलता है कि हमने सिर्फ पढ़ा था, उसने अप्लाई किया। सीरियसली नो थ्री इडियट्स नहीं देखा है, लाइक सीरियसली देखा सर। No sir, देखा है। नहीं अभी देखा तो सब लोग बोल रहे थे नहीं देखा है, नहीं देखा है। मैंने देखा। बहुत बार देखा देखा है। है। हमने इसको 2 बार थिएटर में देखा था और उसको हम लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे थे। सर। मैं पिक्चर नहीं देखता सर, कार्टून देखता। तुम पिक्चर नहीं देखते हो, तुम क्या देखते हो? कार्टून। तुम कार्टून देखते हो, वेरी गुड, यू लाइक एनिमे, वेरी नाइस। इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस वर्ड इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ वेरी फेमस वर्ड। आपको पता है दिस इज व्हाट, प्योर वाटर। Just to test your general knowledge, will pure water be a good conductor? No, Yes. sir. Bad conductor. It contains. No. Pure water, distilled water, pure water. No. 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 आपको पता है प्योर वाटर में क्या हो रहा है? प्योर वाटर जनरेटर में यूज करते हैं। सर, Yes. चार्ज लिखते हुए आ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है पता है? H3O प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। Plus. इसका रीजन पता है क्यों हो रहा है सर? सर वो H प्लस वाटर में स्टेबल नहीं रहता, तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H बनता है। plus जो होता है, it is a highly unstable ion. Yes. What it does it? It combines with H2O and forms H3O plus. हाइड्रोनियम। क्यों हाइड्रोनियम ऐसा हो रहा आयन। है? वो H2O के साथ ही कंबाइन क्यों करता है फटाक से? मैंने आंसर बताया। लोन पेयर। Lone. ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा? Yes. अच्छा, इक्विलिब्रियम सीखा 11th स्टैंडर्ड में? Yes. 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 This equilibrium is towards the left side. This equilibrium is towards the left side. मतलब बहुत मिनिमल डिसोसिएशन होता है। मिनिमल डिसोसिएशन, इज इट विजिबल या फिर मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ? छोटा। थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिख। दिस इज मिनिमल डिसोसिएशन, बहुत कम डिसोसिएशन होता है बेटा। इसीलिए प्योर वाटर में ना आयंस नहीं होता है, इसीलिए प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता। सर इसलिए इन्वर्टर में यूज करते हैं ना इसको कि चार्ज स्टोर इन्वर्टर कर में सके। इसको इन्वर्टर में डिस्टिल्ड वाटर यूज करने का कारण ये है कि चार्ज हम स्टोर लोग कर को सके। जो हमने H2SO4 यूज किया है उसका कंसंट्रेशन भी कम नहीं करना है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन रखना है। मैं बताऊंगा ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन यू डू नॉट वांट टू ऐड मोर इम्प्योरिटीज टू इट। सर इसमें एक बार फिर से बताओ ना डिस्टिल वाटर का। क्या बोल रहा बेटा? वापस एक बार फिर से बताओ ना, आवाज ब्रेक होती है। H2O जो रहता है ना बेटा and OH minus, this equilibrium is towards the left. यहाँ पे आयनाइजेशन ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही वीक आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है प्योर वाटर का। What does this mean? This means pure water will not have free ions. If it does not have free ions, how will that solution conduct? Right? Yes. अरे
अब आपको मुझे ये समझाना है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इस प्योर वाटर में मैं कोई भी सॉल्ट डाल दूं या एसिड डाल दूं या फिर कोई भी ऐसा एक कंपाउंड डाल दूं जो उसमें इजीली डिसॉल्व होता है। What is the meaning of dissolving? Beta, I'm taking this very slow because I want you to understand the concepts. Beta, salt हो गया, acid हो गया. You know we have learned one word which we do not know much about. Yes, sir. Hydrolysis. Hydrolysis. Just give me a minute. Huh? Just give me a minute. Yes, guys. बेटा बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना? No, sir. No, sir. मेरे घर वाले सुबह सुबह लड़ाई करते रहते हैं यूजलेस पीपल. यस, प्योर वाटर, सॉल्ट एंड एसिड, मतलब उसके अंदर आप कुछ भी मिक्स कर, यू नो, इवन इफ इट इज नॉट वाटर एंड इफ यू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड स्टिल इट इज गोइंग टू कंडक्ट. वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको. सो डिसॉल्व मतलब एक चीज को जिसके अंदर हम लोग डालेंगे इट इज गोइंग टू डिसोसिएट. डिसोसिएट बोले तो Breakdown. Breaked. ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन. ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से हो रहा है? Hydrolysis. Hydrolysis. हाइड्रो की वजह से, पानी की वजह से. Pani. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Yes. Yeah. Yes. Has the ability to form hydrogen bonding with elements. Yes. Yeah. Yes. Sir. This is the reason why, this is one of the reasons why water is a universal solvent. Yes. 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 मैं NaCl को पानी में डालता हूं, जब मैं NaCl को पानी में डालता हूं वो क्या बनता है बेटा? Ion from Na plus Cl minus. Cl minus. ये वर्ड सुना है पहले कभी? Yes. Salt Aqueous solution. solution of salt. Aqueous solution. Salt Aqueous solution. solution of salt is called as brine solution. Brine Right. solution. Brine solution. ये बेटा जिंदगी में कभी आगे ब्राइन सोल्यूशन करके आ रहे हो, डरना मत, ठीक है? Yes. यही बात है, यही मतलब है उसका. अब क्या होता है, पानी इसको तोड़ता है into what? Na plus and Cl. Can I rub this? Guys, can I rub this and go ahead? No. Why no? I have to rub it बेटा, अभी जगह नहीं है बोर्ड पे ना, ऊपर ऊपर कैसे लिखूं? सर चल 2 ठीक. मिनट रुको, लिखना है. ठीक है बेटा. This is the potential difference source, battery, external battery. These are called as electrodes. Do you know electrodes can be neutral? Guys, नहीं समझा सर मतलब. No, sir. No, sir. No, sir. electrodes can be neutral. मतलब they can be just for the sake of conduction and not for the chemical reaction. No, sir. कॉपर को अगर मैं किसी सोल्यूशन में डालूंगा तो या तो कॉपर डिसोसिएट होकर उस सोल्यूशन में आयंस की तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसके Yes. ऊपर कॉपर डिपॉजिट होकर वो और मोटा हो जाएगा. ये और पता है? मोटा हो जाएगा. Yes, Yes. sir. Yes. There are certain क्या बोलते हैं electrodes like platinum, like carbon rod, which do not react with the solution and they are present only because for conductivity. सर्किट वो कंप्लीट करने के लिए सिर्फ. वो इलेक्ट्रोड खत्म नहीं होता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है. वो ना तो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा ना ही करंट के साथ रिएक्ट करेगा. वो सिर्फ करंट को अपने थ्रू पास करने के लिए एक माध्यम बनेगा. सर नहीं समझा सर अभी. नहीं समझ, ठीक, होल्ड. वो आगे से कर. इलेक्ट्रोड समझे? इलेक्ट्रोड पता है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. This is
what we call as electrolyte. The solution which we are using for conduction is called as electrolyte. तो basic electrolytic cell, एक basic electrolytic cell का requirements क्या रहेगा बेटा? External source of battery, conducting wires, electrodes and electrolyte. Simple, एकदम simple. Clear है बेटा? Yes. Yes. Yes, अब sir. Yes. कब मैं ये मिटा सकता हूँ? Yes, sir. इधर रब कर दो बेटा. Yes, sir. Yes. You know, electrode one is positive One is negative. Negative. and one is negative because it Yes. is connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery. Yes. 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 अब भाईजान इस इलेक्ट्रोलाइट में NaCl एग्जांपल लेते हैं. पानी के अंदर क्या है? Na plus Cl minus. मैं एक का एग्जांपल है, ठीक है? What do we know about opposite charges? Attract. Repel each other. Attract each other. Attract each Correct. other. So what's going to happen? These chloride ions are going to go towards the positive Anode. terminal, and Anode, these yes. sodium ions are Negative. going to go Cathode. towards Cathode. Cathode. ठीक है? Guys, under the influence of an external charge, under the influence of an external battery, the ions become mobile inside the electrolyte. इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये पूरा रॉड पॉजिटिव हो जाएगा. Yes. Yes. इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो पूरा रॉड नेगेटिव हो जाएगा. Negative. Yes. Yes. पॉजिटिव आयन जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. Yes. Have you Yes. heard of these words? Yes. Yes. Cathode. Cathode, anode. Anode. कैथोड और एनोड का नाम सुना है आप लोग ने? Yes. Yes. Yes, sir. Positive. Just give me a second, I'm sitting down. Cathode is a electrode where cations are coming. Yes. 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 Yes, sir. Anode is the electrode where anions are coming. Yes. Yes. So anode is positive and cathode is negative. Think over this. मैंने अभी जो बोला उसके ऊपर सोचो. Yes. Cathode is the terminal where cations are coming. Cations are positively charged. Yes. Yes. कैथोड के ऊपर cations आ रहा है तो कैथोड कैसा होना चाहिए बेटा? Negative. Negative होना Negative. चाहिए. एनोड के ऊपर anions आ रहा है. Anions are negatively charged. Yes. 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 तो एनोड क्या होना चाहिए बेटा? Positive. Positive होना चाहिए. ये क्लियर हुआ आपके दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आपको पता है? सर ये न्यूट्रल करता भी जाएगा ना अगर Cl माइनस आएगा तो एनोड. क्या बोल रहा है बेटा? सर वो न्यूट्रल करेगा ना अगर आयंस एनायंस जाएंगे तो एनोड पे. ना आइडिया थोड़ा सा क्लियरली बोलो. सर ये न्यूट्रल कर देगा इलेक्ट्रोड्स को. कंडक्टर को न्यूट्रल कर देगा मतलब समझा नहीं. मगर Cl माइनस पॉजिटिव पे गया तो पूरी तरह से सर वो बोल रहा है कि वो कैथोड मतलब पॉजिटिव रहता है तो वो इधर नेगेटिव गया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा कहीं इलेक्ट्रॉन. नहीं, वो न्यूट्रल नहीं होगा बेटा, उसका चार्ज रहेगा. अब देखो, न्यूट्रल करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन चाहिए. ये उतना चाहिए. राइट. अब भाई ये पूरा ये रॉड पॉजिटिव है. यहाँ पे कुछ आयंस आ रहे हैं. Will it be able to neutralize it? No. No. नो. तो दूसरी बात पता है क्या है? वो जब यहाँ पे आ रहा है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है. ये अपना इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में डाल देता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके सोडियम बन जाता है. तो यहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे गैस इवॉल्व. धीरे धीरे सीखेंगे. ये आपने सुना रहेगा ना, गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें. यस सर. Yes.
मैं पानी के अंदर जो भी डालूंगा, मैं पानी के अंदर कुछ भी डालूं, वो हमेशा कंडक्ट करेगा क्या? नो नो सर हमारे लगता है नहीं No. करेंगे। ये बेटा शुगर सोल्यूशन कंडक्ट करता है? नो नहीं करता है सर। नहीं बनाता है। यस Sugar is also a salt only ना? नो सर, वो सॉल्ट No. सर वो तो मीठी होता है, Sugar is not a शुगर salt. शुगर होता है, शुगर ठीक है, शुगर होता है, Sugar. ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज glucose is a type of sugar only ना? यस Yes. Yes. ये बेटा, you know this right? यस This is not a salt. Yes. This is not a salt. प्रफुल्ल, ये सॉल्ट क्यों नहीं है बेटा? मैंने सिर्फ एक चीज बोला कि शुगर इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, मैंने ये नहीं बोला शुगर इज अ सॉल्ट। इज शुगर अ टाइप ऑफ सॉल्ट? इफ नो, व्हाई? अनिमेश, would you like to throw some light on it? No? Okay. अभी शारन बर्गे से, सर मेरा नाम लिया। तू बर्गे से थोड़ी है, तू तो शाजी है। यस शारन इज नॉट देयर बर्गे से टुडे। कोई Yes, बात sir. नहीं, आज लाइट नहीं होगी, ये है ना, बारिश है। Yes, sir. आप हो? हाँ शारन बर्गे से, would you like to throw some light? Is sugar a type of salt? If yes, why? If no, why? It's a very easy question बेटा, यही होता है बेसिक्स बेटा, ये बेसिक्स क्लियर करना हमको। ऐसे सब क्वेश्चंस पे पॉन्डर करोगे ना, जैसे शुभम एंड Sir, sugar नहीं, ये लोग Sugar पूछते हैं। salt नहीं है। तुम चुप रहो, तुम कौन बोले? अमित। अमित, अमित हाँ, बोलो, चलो अमित, आज क्योंकि- अमित से बात करते हैं। अमित, आई नो अमित, आई हैव हर्ड योर वॉइसेस, आई हैव हर्ड योर वॉइस अ लॉट ऑफ टाइम बेटा। आप शायद 12th में ज्वाइन हुए तो इसलिए मुझे आपकी आवाज की आदत नहीं है। Yes, sir. Sir, है ना क्योंकि अमित? salt, हाँ, अमित, ये sir, सॉल्ट क्यों नहीं है बेटा? sir, क्योंकि salt में ऐसे क्लोराइड्स रहते हैं ना, और शुगर में वैसा नहीं रहता है। ओ, Sugar- so you are saying कि जिसके अंदर क्लोराइड एटम है सिर्फ वही सॉल्ट है, K2SO4 सॉल्ट नहीं है, नहीं सर, है वो। NaHSO4 सॉल्ट नहीं है। सर मैं बोलूं? नहीं, कौन हो आप बेटा? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? तुम कौन हो? सर मैंने आशुतोष। नहीं शारन, कीप क्वाइट बेटा। आशुतोष बोल बच्चे। सर मैं, हाँ सर मैं बोलूं? अरे हाँ बोलना भाई। हेलो। हाँ हाय, सर, बोलो। जैसा अभी जो सॉल्ट रहता है ना, जैसे, हाँ हेलो सर, जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो आयोनिक बॉन्ड से बनता है, आयोनिक बॉन्ड से। और ये जो ग्लूकोज है इससे कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। यस यस सर, यस सर। यस सर, इतना डिफरेंस था मैंने। This covalent bond cannot be easily broken by water. Broken, yes. It can Yes. form hydrogen bonding. That is why it is soluble. Guys, understand the difference, huh? यस It can form hydrogen bonding with this. Because यहाँ पे देखो OH है, पानी में भी OH है। ये बेटा hydrogen bonding possible है? यस सर। हो सकता है, हो सकता Possible You है। recall hydrogen bonding, the very first Yes. topic which I taught you when you didn't know me and I didn't know you. यस। No, sir. है। यस स्टेट्स ऑफ मैटर। Yes. States of matter, the first Chapter chapter which one. connected the two of us. Yes. यस From that day to this day, I have been non-stoply teaching you. यस Yes. And you are now bored of me. दो। शायद yes बोलेगी, मुझे पता है, because she speaks Yes. the truth. You die बेटा, ठीक है? Yes. ये देखो, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ये बेटा आयनिक बॉन्ड में आयनाइजेशन होता है, इजीली टूट जाएगा into Dissociation होता plus है। and minus ions. कोवैलेंट बॉन्ड में पॉसिबल है बेटा? नो, नो नो डिकम्पोज होता है पर। इसमें आयंस बनता है, आयंस नहीं बनते सर। नहीं नो बनते। नहीं बनते। इसमें नहीं क्या बनते। बनता है? फ्री रेडिकल्स बनता है। रेडिकल्स। अवेयर ऑफ these terms? यस Yes, सर। sir. यस Organic chemistry. तो भाई जब आयन की रहेगा तो कंडक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। नो, तो ऐसे ही ना,
ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो, जो पानी में डिसॉल्व होती हैं बट आयनाइज नहीं होती। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स नाउ, dissolving and ionization. So the compounds which can ionize in water, they will be called as strong or good electrolytes. ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो टाइप के अपन देखेंगे, and the ones which do not ionize are called as non-electrolytes. Why am I calling them as non-electrolytes? Because if I pass current through with the help of electrodes in this solution, current will not pass. Why will Yes. current not pass? Any idea? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आयन बताया, पॉजिटिव current- एंड आयन ही नहीं है। आयंस में होते हैं। So beta, what are ions doing the job of? They are doing the job of a carrier for the current. कैरियर Yes. Yes. Clear हो रहा है कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में कि Yes. आयन की वजह से क्यों करंट पास हो रहा है? Yes. Yes. बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दो टाइप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Weak electrolyte. Strong and weak. आपका वो थर्ड चैप्टर हो गया जिसमें हम लोग ने चालू है। चालू है सर, चालू। उसके अंदर सीखेंगे आप Ionic इसको, equilibrium. आयोनिक आयन Ionic की equilibrium. क्रिया उसके अंदर आप ये डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. What is the difference between strong and weak electrolytes, Prathamesh? Aditya? Ajinkya? Girish? Tanmayi? So I am assuming because of this beautiful, beautiful weather, you are sleeping. Okay. किसको पूछूं? अमित आप बताओगे? Yes. Is your name Amit? करो ना क्या क्या बोल रहे बेटा? क्वेश्चन रिपीट करो ना तुम तो अमित नहीं हो, तुम तो ये हो. सर मैंने दूसरे मोबाइल से लॉगिन किया चार्ज खत्म हो गया ना इसलिए No, that is your fault. That is your default. That is सर your fault. बोलू Because you did not connect the electric board with the battery of your phone, so the Yes. the chemical reaction got exhausted and the phone battery went down. Now to keep up that ions flowing and the regeneration of the ions, you have to connect it to the external source of current, right, Shubham? यस सर यस Shubham, what I'm Sir, asking is, beta, I'm asking you, what is the difference between a strong and a weak electrolyte? सर आप बोलू समझा सर Amit, बोलो बेटा. सर सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो पूरे आयोनाइज होते हैं एंटायरली और complete dissociation. और वीकली में से पार्शियली होते हैं आयोनाइज्ड. Excellent, excellent. Guys, you are aware of these terms? यस सर Yes, सर sir. एसिडिक एसिड भी पार्शियल डिसोसिएशन होता है एग्जांपल एसिडिक एसिड यस NaCl HCl भी दे सकता हूँ. यस Yes. सर Yes. Yes. Yes, sir. Strong acid. जिस तुमने एसिड बोला तो मेरे दिमाग में एसिड आया, इसलिए मैंने एसिड. अभी आप वो जो थर्ड चैप्टर उसमें सीखते रहेंगे कि there is something called as partial dissociation and there is something called as complete dissociation. कुछ कंपाउंड्स, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था वाटर का, रिमेंबर? Yes. 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 यहाँ पे the equilibrium is towards the left side. When the equilibrium, इसका Kc का वैल्यू बहुत छोटा रहता है. ये Kc बेटा, Yes. हाँ यस सर ठीक है, इसका Kc का वैल्यू बहुत छोटा रहता है. What is the meaning? अगर Kc का वैल्यू बहुत छोटा है मतलब the equilibrium is towards the product side. That means the reaction is not happening to the great extent. If the Kc value is more, what is the meaning? It means the reaction Completion is में जा रहा है. almost towards completion. yes So for strong electrolytes, the Kc value is very high, and for weak electrolytes, the Kc value is low. Low. Very low. लिख सकते हैं Yes, sir. Yes. Yes. तभी आपको Yes. टेक्स्ट बुक में ना दिया हो, but can I relate my 11th standard with my 12th standard and prepare for my JEE together? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. ठीक है बेटा, इनका ना डिसोसिएशन कंप्लीट क्या होता है? एक मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं. अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl पानी में डाला, ये HCl का हाइड्रोलिसिस होगा बिकॉज वो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो 100 में से ना 98 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे. अरे as good as 100. Yes. Yes.
अगर मैंने 100 molecules of CH3COOH, ये बेटा acetic acid, weak acid. Yes. Yes, weak Why, acid. why am I calling it as a weak acid in the first place? Can I call it as an organic acid? Organic acid. Yes. Yes. क्यों Yes, इसको sir. organic acid क्यों बोलूंगा मैं? कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन है। Covalent bond बना दे वाह वाह कार्बन। वाह, आज मेरे बच्चे जोश में। Car- वेरी गुड। तो इसका अगर मैं 100 तोड़ूंगा तो इसमें से कुछ 40 टूटेगा और 60 नहीं टूटेगा। 69 today. So, yes, Yes. sir. Yes. डोंट बी Yes. अनरियलिस्टिक। यहाँ पे ऐसा मत करना कि 2 टूटेगा और 90, अगर 2 टूटेगा तो कंडक्शन होगा ही नहीं बेटा। Yes, sir. Yes. तो Yes, 40 sir. टूटेगा और 60 नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे ज्यादा होगा कंडक्शन कि यहाँ पे ज्यादा होगा कंडक्शन? HCl में। HCl में। पता होगा। This brings us to a topic where we can measure the Conductivity. conductivity of a solution. मैं इतनी देर से कंडक्टेंस कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूँ बेटा, ठीक है? मैं इतनी देर से कंडक्टेंस कर रहा हूँ, बट अब हम लोग को कंडक्टिविटी के बारे में बात करना पड़ेगा। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, can you give me 2 seconds? I'm a little out of breath. Yeah. I'm recovering. So this is an example, guys. Can you see how hard working I am? Yes. Yes. सर विदाउट Yes. इलेक्ट्रिक सेल से भी बना सकता है ना? क्या? विदाउट इलेक्ट्रिक सेल से भी करंट बना सकते हैं ना? वो केमिकल टू इलेक्ट्रिक होता है आपका Yes. इन्वर्टर, आपका जनरेटर, ठीक है? उसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना कभी भी। नहीं, इन्वर्टर नहीं, जनरेटर, सॉरी। इन्वर्टर इज इलेक्ट्रिक टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिक, जनरेटर इज प्योरली केमिकल टू इलेक्ट्रिक, ठीक है? Yes, sir. सर पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया था, ये इसमें पढ़ेंगे। किसमें? सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज, रिडॉक्स रिएक्शन में बताया था 6। सॉल्ट ब्रिज ना, Daniel cell. Yes. सॉल्ट ब्रिज ना, अपन पहुंचेंगे तब बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज। उसके उस बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज, तुमको पता है? सर इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में था ये। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन में था, बट उसका एक छोटा सा पार्ट था, इसके अंदर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। Yes. सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों कंडक्ट करेगा ना बट? हाँ, दोनों कंडक्ट करेगा, ये ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। हाँ, तो हाँ। डिपेंडिंग ऑन माय एप्लीकेशन, जहां मुझे ज्यादा करंट चाहिए मैं स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा, जहां मुझे बस थोड़ा चाहिए तो वहां मैं वीक यूज कर सकता हूँ। अभी जो टॉयज वगैरह का बैटरी होता है उसमें कोई ज्यादा कंडक्शन का जरूरत होता नहीं है, और उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडक्टर डालना भी नहीं है, बिकॉज बच्चे उसको खेलते हैं, कुछ टूट पिट गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना बेटा? Yes, sir. बिकॉज Yes, sir. में तो यही होता है बेटा, खिलौना आया दूसरे दिन टूट जाता है, फिर बैटरी का अपन पंखा बनाते हैं। ये बना है क्या कभी? Yes. बेटा हम लोग गरीब थे तो हमारे पास खिलौने थे ही नहीं बचपन में खेलने के लिए। तो पता है हम लोग क्या करते थे? हम लोग बाहर जाके खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। तुम्हारे ऐसा नहीं, लैपटॉप पबजी खेला, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, यूजलेस। गो एंड प्ले आउटसाइड बेटा। ऐसी बारिश में हम लोग घर में रुकते नहीं थे, फुटबॉल खेलते थे। कभी खेला बारिश में फुटबॉल? Yes, sir. Yes. क्रिकेट खेला है। नो सर बारिश नहीं में खेला। फुटबॉल खेलने का जो No, मजा sir. है, जो गिरने का और कीचड़ में सनने का मजा है, वो तुम लोग, तुम्हारी जनरेशन को नहीं पता। पता है सर, पता है। नहीं पता कुछ। नहीं पता है सर। ओके फाइन। ये सुना सा लग रहा है। Yes. Yes. Ohm's law. V ये equal to Ohm's law IR. तुमको, Equal to ये IR. Ohm's law तुमको 9th में भी समझाया था, तुमको Yes. 10th में भी समझाया था, तुमको Yes. 11th में फिजिक्स में भी समझाया था। सर फिजिकल Ohm's ओरिजिन law ऑफ तुम्हारा ओम्स लॉ पीछे बताओ नहीं ना। छोड़ता है ना? क्या बोला बेटा? फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। फिजिकल ओरिजिन ऑफ Ohm's law. So what is Ohm's law, Shubham? सर V is directly proportional to I, मतलब जैसे करंट बढ़े वोल्ट। यस सर ये कैसा है, ये ओरिजिन से भी पता चलेगा कैसा आया ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैसे आया, उस ओरिजिन से पता चलेगा। दोनों वे करेक्ट है। Yes. यस यस Yes. Yes, sir. Yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा Yes. करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। बट इज दिस नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट? Yes. यस सर। डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ना। अगर पोटेंशियल Yes. डिफरेंस नहीं है तो करंट होगा क्या? सर No. No, पोटेंशियल sir. No, डिफरेंस की नहीं वजह होगा। से करंट प्रोड्यूस होता है ना। क्या बोल रहा है बेटा?
पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी करंट फ्लो होता है। Exactly. So this is dependent on this, na? Potential Yes. difference. Yes. So this way of writing is correct. नो, उल्टा No. आएगा। No. उल्टा। This is directly proportional to हाँ, current. yes ऐसे sir, लिखना चाहिए. बराबर है। Yes. Yes. ऐसा But कर in this way, ये लिखना गलत होगा क्या? No, no, नहीं नहीं. सर करेक्ट है। No. Okay. Correct है. नहीं, वो भी उधर correct है ना कांस्टेंट बेटा? अलग आएगा। अरे नहीं रे बाबा. सर वो भी कांस्टेंट भी सेम आएगा पर कंडक्टेंस उल्टा आएगा आएगा। उधर, Same here. 1 Yes, R उल्टा आएगा। आएगा. by R हाँ, आएगा. correct. V is directly proportional to I. Proportionality का sign निकाला तो क्या करेगा मैं? Constant. IR. What is the constant over here? रेजिस्टेंस। सर आर का Resistance. वैल्यू ml n स्क्वायर टाउ ए आएगा। आर का वैल्यू ml क्या n बोल स्क्वायर रहे हो? टाउ ए। What is R? फिजिकल R is ओरिजिन। Resistance. Resistance. शुभम थोड़ा धीरे चलते हैं ना बेटा प्लीज. There are students who are not even aware of this concept, so I want to consider everybody in book. What you are saying is absolutely correct, and I'm very proud of you that you are referring other books also. I know you are studying from NCERT, and I'm asking everybody to refer that. I'm asking all the students in this lecture कि 12th का टेक्स्ट बुक लिया आपने ठीक किया, बट अगर आप खरीद नहीं सकते हैं एनसीईआरटी तो एटलीस्ट डाउनलोड करके रखो 100 कॉपी. ठीक है बेटा. आपका जैसे ही स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक खत्म होता है तुरंत एनसीईआरटी रेफर करो, उसके बाद कोई दूसरा बुक रेफर करना. आप स्टेट बोर्ड के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो. एम आई राइट तेजस एंड शुभम? यस यस आधे से Yes, ज्यादा sir, कॉन्सेप्ट yes. जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं. Yes, sir. यस Akshay also does that, right? Akshay is actually sitting with 11th ka books also, guys. I'm sorry, Akshay, I'm spilling your secret, but he is exceptionally working hard. So you have to do that too. You have to mix concepts and study. Okay, beta? So resistance is what? Potential difference, and this is what? Current. 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 So R क्या हो जाएगा? What is the unit of voltage? Volts वोल्ट पर एम्पियर। upon Volt per ampere. ampere. What is this volt per ampere? ओम। Ohm. ओहम. इसके नाम Yes. के बाद रखा था इसका ओहम. ओम। Yes. Yes. This is resistance. This is resistance. रेजिस्टेंस। ठीक है. आपको पता है resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area. Area. एरिया। Yes. कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. क्यों ऐसा? सीधी सी बात बताता हूं. आपको 100 मीटर भागने को बोला और आपको 100 किलोमीटर भागने को बोला, आप ज्यादा कहां पे थकोगे? 100 किलोमीटर. 100 में 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर. अच्छा. छोटे रास्ते में ज्यादा दिक्कत आती है कि बड़े रास्ते में ज्यादा दिक्कत आती है? Just छोटे रास्ते. analogies for you to understand the concept quickly. Guys, छोटे रास्ते में ज्यादा दिक्कत छोटा है कि रास्ता बड़े मतलब रास्ते में? लेंथ से छोटा कि विड्थ से छोटा? Length. We are only talking about length बड़े Yes. रास्ते में दिक्कत with आती है। area of cross section. बड़े में दिक्कत है. बड़े में। बड़े बड़े में में ज्यादा ज्यादा. ट्रैवल करना है, ज्यादा Yes. थकेंगे, ज्यादा ऑब्स्टैकल Yes. देंगे. Yes. यस सर। Yes, sir. तो जितना ज्यादा लेंथ उतना. What is resistance? It is the opposition to the flow of current. Yes. यस Yes. सर। ये ऑपोजिशन Yes. किससे मिलता है बेटा? वो जो आयंस रह गए हैं Ions. इलेक्ट्रॉन्स निकलने के Ions. बाद उससे, Yes. यस Yes. सर। जिसको आप Yes. होल्स भी बोलते हो. यस Oh, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं वो इससे भी टकरा सकते हैं ना. yes. टकरा सकते. जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा होल्स भी रहेगा, Holes रहेगा. Yes. तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा. Yes. Yes. इसीलिए लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Yes. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये एक वायर है, और दूसरा वायर है. आप किस टनल में से इजीली घुस सकते हो और निकल सकते हो? बड़े वाले Second. टनल में। Second. Second वाले में. Second. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा रहेगा है. तो करंट को जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, आराम से Resistance. जाएगा। Yes. ज्यादा. और Yes. रेजिस्टेंस कम होगा.
Okay, कम what is होगा। possibility of ease of going? मतलब less resistance. यस Yes. और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये एरिया कम रहेगा तो इसको अंदर जाने को दिक्कत होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ज्यादा होगा। Yes. बड़ा एरिया मतलब कम रेजिस्टेंस, कम। छोटा एरिया मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ज्यादा resistance. ज्यादा resistance. Inverse. Yes. Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। अच्छा, सर वो छोटे वाले में उसका स्पीड ज्यादा होगा ना? स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा कुछ देखा है? मैंने क्या किया? Yes. यस मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल करके एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर। व्हाट इज दिस कांस्टेंट बेटा? रेजिस्टिविटी Resistivity. On L. What is this? This is called as resistance. सर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स इट डिफरेंट। It's going to be different for different materials because Yes. हर एक मटेरियल का एरिया, लेंथ एंड रेजिस्टेंस अलग अलग। अलग। ये लेंथ किसका है बेटा? कंडक्टर आप बोलोगे साला इलेक्ट्रोलाइट से कंडक्टर में कहां पे? एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यस सर Yes, sir. क्रॉस सेक्शन पता है क्यों बोलते हैं? वायर ऐसा पूरा रहता है, area तो बड़ा मैं रहता बीच में है। से वायर काटूंगा ना, तो Yes. मुझे ये पार्ट ऐसा दिखेगा। दिस इज क्रॉस सेक्शन, पता है ना? सर्कल क्रॉस यस सेक्शन सर यस। Yes. रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट देखो, ओम, एम्पियर, मीटर। सर मीटर स्क्वायर आएगा उधर एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा नहीं, ओम मीटर ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल क्या आ जाएगा? ओम मीटर। मीटर। समझ गए? Yes. Yes. मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं बेटा? बिकॉज दिस टेल्स यू अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। हमें मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करके ही पढ़ना है, बिकॉज एट द डेज एंड हम लोग कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। एक में इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में आयंस है, बट द Ions. बेसिक थिंग व्हिच दे आर गिविंग, व्हिच इज करंट, वो दोनों में सेम है। यस Yes. यस यस बोलो बोलो। आई एम गेटिंग ब्रेथलेसनेस, आई एम मेडिटेशन। ये लिख लो फटाक से, जल्दी से लिख लिया? यस नो सर नो लिखना है सर। No, लिख sir. लो ना जरा, No, मैं no, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। Done guys? शुभम? Yeah. डन। गुड नाइट नो नो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। गोल्ड फ्लैश गोल्ड कंपनी का फ्लैश। नाम है Gold flash. सर ये वो क्या दिख- सेल This- इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड This is इलेक्ट्रोड electrode. This is Electrolyte. Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट Electrolyte. when I am connecting this. When I am connecting to this and this is going inside the circuit, what is happening? The current is passing through this, through the electrode is going inside this solution. यस Yes. This Yes, sir. solution starts conducting और उसके अंदर का जो गैस है, it starts liberating at the electrode. अपर साइड और वो liberated गैस क्या होता है? वो यहाँ से बाहर आता है यस और Yes. आपके पूरे घर में घुसता है और मच्छर को मार देता सर ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता ये।
यस हाँ, सर ये धीरे-धीरे इफेक्टिव आता पता है है। क्यों नहीं होता है? आई हैव टू वॉश माय हैंड बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट मेरे हाथ पे लग चुका है, अगर मैं इसको सूंघ लिया तो मैं मर जाऊंगा। Yes. वो नहीं होता इफेक्टिव सर। पता है क्यों नहीं होता है? Because the mosquitoes have become immune to this. They laugh on us. Yes. You stupid humans, Yes. bring something new. Yes. Survival of fittest. बायो में सिखाया था। Just give me a second. Wash my hands and come. डन सर डन, ये हो गया लिख के सबका। यस सर हो गया। Sir, रुको यार। So my wife has gone to her mother's place for Rakshabandhan, and I have to do household work. तुम लोग को क्या पता, तुम लोग बैठ बैठ के खाने वालों में से हो। बोल बेटा बोल। sir, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड यूज किया है। और इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल, वो देखना पड़ेगा व्हाट इज दैट केमिकल। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताओ ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम चीज, सिल्वर स्पून का अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना। Yes, Yes, sir, रस्सी को sir. निकालने के लिए। सर उस उधर से गैस निकलने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड यूज करते कैथोड ना। हाँ, उसमें उसमें आपको बताता हूँ, जैसा बैटरी के अंदर ना कैथोड और एनोड इनबिल्ट होता है, उसका Yes. बॉडी इज एक्टिंग एज एनोड एंड कैथोड। ऐसा भाई लोग, ये समझा तुम लोग को? Yes. यस Yes, सर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, you know there is something called as conductance. यस यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ Reciprocal of रेजिस्टेंस। सीमेंस होता है, सीमेंस। Conductance is सीमेंस यस होता है। सर reciprocal of resistivity. यूनिट क्या आ जाएगा पता है? सीमेंस पर ओम सीमेंस Per पर ohm. ओम, सीमेंस। मो मो यस और सर सीमेंस। सीमेंस। सीमेंस नाम की कंपनी है, पता है तुमको? नो सर। नहीं पता? क्यों नहीं पता तुमको? पता होना चाहिए। पहली बार सुन रहा हूँ सीनम क्या कंपनी। करते रेजिस्टिविटी भी उल्टा होता है ना कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ये है, तो ये ओम पर ओम को हम लोग उल्टा लिख देंगे तो ये ओम का क्या हो जाएगा? मो हो जाएगा। तो बट स्टैंडर्ड वाला क्या यूज करते हैं? सीमेंस। सर रेजिस्टिविटी का भी उल्टा कंडक्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी था, कंडक्टेंस में क्या आएगा? कंडक्टिविटी Conductivity. ये किसका उल्टा हो जाएगा? रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा। सर सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टिविटी सिग्मा का रहता है उल्टा ना। है तो क्या हो जाएगा? सर सर हाँ बोलो। वो जी सिग्मा रहता है ना। जी जी क्या रहता है? वो मतलब वो सर कंडक्टिविटी को सिग्मा बोलते हैं ना। सिग्मा से सिग्मा? डिनोट करते। हाँ यस Yes. Yes. तो मतलब जी से भी डिनोट करते हैं। यस, यस जी से भी डिनोट करते हैं उसको। देखो मैंने आज कुछ नया सिखाया तुमको, क्या जैसे यस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। इसका यूनिट देख लो, पर ओम पर मीटर। Per meter. Siemens per meter. मो पर मीटर, सीमेन पर, और सीमेन नहीं होगा ये, सीमेन, हाँ सीमेन पर मीटर। सीमेन Yes. यस ये सब जो हमने सीखा है, दिस इज रिगार्डिंग टू व्हाट बेटा? दिस इज रिगार्डिंग टू मेटालिक कंडक्शन। यस सर Yes. सर बेटा अगर मेटालिक कंडीशन में ये सब, एक्सक्यूज मी, अगर मेटालिक कंडीशन में ये सब होता है तो और भी इसमें भी होगा।
Yes. क्या बोलते हैं हाँ, नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में भी होगा, Yes. इलेक्ट्रोलिटिक Yes. कंडक्शन में भी होगा ना, Yes, sir. Yes. होगा Yes, कि नहीं होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इंटरनल होगा। रेजिस्टेंस नहीं, वो अभी नहीं सीखना अपने को, जब उन बैटरीज और सेल सीखेंगे तभी करेंगे। यस ठीक है, ये लिख लो फटाक से। डन सर हो गया बेटा? No. यस No, no. सर इसका फिजिकल ओरिजिन है क्या? क्या बोल रहे बेटा? केमिस्ट्री में इसका फिजिकल ओरिजिन है? नहीं 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 है बेटा, वो फिजिक्स में पढ़ो ना यार, मैं को फिजिक्स भी पढ़ाऊं, तुमको सब पढ़ाऊं मैं, है ना। आपको पता है जब मैं एयरफोर्स में पढ़ाता था तब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ा था। एयरफोर्स? एयरफोर्स स्कूल यस एयरफोर्स विमान नगर में, पुणे में था एयरफोर्स स्कूल। Yes. So I joined there and क्या बोलते हैं, the principal took my interview. I gave a demo lecture. I was much more younger, so I got accepted by the students and they were happy to learn with me. So we had a 3 months crash course with Air Force का ये था, like a very long time back. That time they had offered us 36,000 per month, which is a big amount of money for me at that time. आज तो बहुत ज़्यादा है. So and so I was there for chemistry and biology, and I sent my friend for physics and maths. So somehow they did not approve of him, and they like, "Sir, we need, you can refer someone." So I had a condition: if you will take him, then only I'll come. Otherwise, I won't. I played smart. यस सर So they agreed. तो हम दोनों को रखा. But then फिर उसका फाइनल ईयर का एग्जाम था, मेरा हो चुका था. तो उसका फाइनल ईयर का एग्जाम की वजह से एक महीना मैंने उसको बोला तू पढ़, चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा. तो यू वोंट बिलीव गाइस, मॉर्निंग 7 o'clock to afternoon 2 o'clock, back to back with hardly 5 to 10 minutes break, I used to teach physics, chemistry, maths, biology. CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड की बात है. स्टैंडर्ड? ये चारों सब्जेक्ट्स मैं बैक टू बैक पढ़ाता था और 3 महीने के अंदर ये पूरा पोर्शन उन लोगों कंप्लीट किया था. देख लिया? यस सर सर फिजिक्स भी Yes. सब पढ़ते थे. Guys, an engineer can do anything. Do you remember I am an engineer? यस. Yes. यस सर नहीं पता Why do I keep telling you all this, guys, बच्चों? Because I want to inspire you. So I'm sorry, I'm just taking this off topic. Yesterday was my team's review with the president of the company. मतलब there are different levels, president, vice president, blah blah blah. So हमारा president का review था, it went very good. So when I was coming back, I met my ex-student at the station, at Amana station. So this person, he was trying to sell credit cards. I didn't know. अभी बहुत मतलब तुम्हारे क्लास का था, लंच क्लास का ही था. His name I don't remember. तिवारी करके था. So he's like, "Are you sure?" Almost public में पैर छूने लग गया. Are you crazy? Why are you doing this? So like he's in the second year. He's doing his second year, and he started working also. So he's working hard as well. So I come across students. I have been a student where I was always hardworking. Hardworking doesn't mean that you have to earn money and study. No, you can put in your entire hard work in your studies also. Guys, trust me, I have struggled a lot. There were days where I used to walk continuously for days and days. Matlab, just I couldn't afford a bike, so I used to walk from home to take tuitions. And today I've come way ahead, beta, way ahead. But if I would have thought of my क्या बोलते हैं आराम and मेरा आराम देखा होता तो today it would have been some different life altogether. So why I keep telling you this about me is I want to inspire you guys to work hard, because there is no substitute, zero substitute for hard work. Trust me, there is no shortcut in it. No shortcut. Shortcuts will always give you bad results. Very bad. सर वो लॉन्ग कट होते हैं शॉर्टकट कौन सा? हाँ, एक्चुअली शॉर्टकट्स वाला देखो तो वो लंबा कट हो जाएगा. So come on, back to the topic. तो बेटा, हम लोग ने अभी
अब हम लोग क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानना है। मैंने आपको वो क्यों बताया, बिकॉज उसी के लाइंस पे हम लोग आगे अब पढ़ने वाले। हमने कंडक्टेंस देखा, हमने कंडक्टिविटी देखा। सिमिलरली नाउ अभी एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक मेटालिक कंडक्टर है। इसका कंडक्टिविटी को और इसका कंडक्टिविटी को कैन आई कंपेयर Yes. in terms of current? Yes, but in terms of flow of electrons and ions it's going to be different. No. Yes. Different. Different. Okay. In terms of current, yes. In terms of flow of charges थोड़ा different होगा. Yes. Yes, sir. Yes. So here we are talking about molar conductivity. Now molar conductivity now can very easily be understood by a definition. What is this? एनोड कैथोड। Anode cathode. दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? यस। 1 centimeter distance. Distance between, ये बेटा एनोड और कैथोड को अगर मैंने फ्यूज कर दिया तो क्या होगा, मतलब एक साथ कर दिया तो क्या होगा, टच कर दिया तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Neutral. जाएगा न्यूट्रलाइज। Have you heard of something called a short circuit, Shubham? Short circuit होगा Yes. sir. Yes. No. sir. Shubham, this wire is carrying current. This wire is carrying current. What if I join their paths? Short सर circuit. करंट बढ़ जाएगा। Yes. Short No, circuit. no, no, no. Hey, listen, रे बाबा. These are two different wires altogether. ये join मतलब ऐसा नहीं. अगर मैंने इसको ऐसा किया तो Spark निकलते होगा। थे। तो spark निकलता है. spark होगा. हाँ. और Yes. and worst cases में आग भी लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से. Yes sir. तो दो चीजें जो करंट्स कैरी कर रहे हैं, आप उसको शॉर्ट करोगे तो ऑब्वियसली स्पार्क क्रिएट होगा. स्पार्क Create. Do you know what is क्या बोलते हैं Coherent concentration discharge. of solution? Do you know what is concentration of solution? Do you remember एक दिन Yes. सैटरडे को जिस दिन नीरज ने गोल्ड जीता था, उस दिन शाम को एक बैच आई थी जिसको मैंने क्विकली रिवाइज किया था. वो काम आया था बेटा. यस सर। यस। यस सर यस वो पूरा चैप्टर मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था. आई गेस 2 Yes. घंटे में हमने पढ़ लिया था पूरा चैप्टर. यस सर हाँ यस सर There is Yes. something called as molarity. यस। यस So, Yes. आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका concentration is 1 molar. 1 mole. 1 mole is wrong word. 1 molar is the right word. What does 1 molar mean, beta? 1 mole. 1 upon mole of 1 solute. liter? 1 liter। लीटर ऑफ Does this mean 1 molar? 1 mole upon 1 Yes. liter? यस So molarity is number of moles upon volume of solution in liters. Solution. यस सर 1 molar solution में, when the electrolytes are placed at a distance of 1 centimeter from each other, वो टाइम पे जो इनका कंडक्टिविटी होता है, that is called as your molar conductivity. Is called as your molar. Sir repeat. सर रिपीट करो Sir, repeat करो. This molar conductivity is represented by lambda. अब आप बोलोगे सर लैम्बडा तो ये होता है. This is capital lambda. This is small lambda. जैसे हमारा कैपिटल A और स्मॉल a होता है, वैसे ही ग्रीक वालों का भी कैपिटल और स्मॉल. Yes. सर इसका Yes. डेफिनेशन रिपीट करो। सर वापस से बताओ ना स्मॉल डेल्टा पता है? यस। यस Yes sir. और कोई कैपिटल वगैरह पता है? काय ओम काई। ओम भी रहता है. सर न्यू भी होता है। न्यू भी होता है। न्यू NU थीटा भी होता है। थीटा बीटा। Epsilon. अल्फा बीटा थीटा गैमा जीटा। अरे this is a foreign language class. Yes. ओमिक्रॉन। Greek सीख रहे बेटा. लैम्बडा. This lambda is nothing but molar conductivity. ठीक है? सर अपन उसका एक- डेफिनेशन अपन महाराष्ट्र में एकदम अंदर गांव में जाएंगे ना, वो लामड़ा को लामड़ा बोलते हैं, एकदम एम्फसाइज करके बोलते हैं. कोंकणी लोगों की भाषा सुनिए जो कोंकण में रहते हैं. Which are on the No, sir. Konkan. They are the Funny है. most sweetest spoken people. They speak very sweetly.
Yes. अगर आप उनसे नॉर्मली भी बात करोगे ना, you will fall in love with them. They are so sweet. Anybody Konkani in my class? Useless. Yes. Nobody. yes sir, Yes. yes sir, Okay. maybe, कोंकण के लोग मच्छी बहुत अच्छी बनाते हैं. yes sir, maybe. What has that to do Yes. with molar conductivity? Nothing. So what is molar conductivity? Molar conductivity is the conductivity measured when the concentration of the electrolyte is 1 mole and the electrodes are placed 1 centimeter apart in the cell. ये कितना तो इजी है. Yes. यस सर समझा. Yes, ए बेटा सर रिपीट कर. रिपीट करो बेटा. Yes. Molar conductivity is the conductivity of the electrolyte. Molar conductivity is the conductivity of the electrolyte. पीयूष डोकले, तू आज मैसेज क्यों कर रहे हो बेटा? सर मोला- मेरा आवाज नहीं जा रहा था अभी तो आ रहा है प्रॉपर्ली. मोलार सर, पहले पूछ रहा था. molar conductivity is the conductivity of the electrolyte when the concentration of electrolyte is 1 mole. Sorry, when the concentration of electrolyte is 1 molar, 1 capital M लिखना, and the distance between the two electrodes is 1 centimeter. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, and when the electrons are separated by a distance of 1 centimeter, or when the electrodes are placed 1 centimeter apart. कोई भी इंग्लिश यूज कर सकते हो, मीनिंग सेम. सैरन लिखा बेटा? Yes. सब लोग ने लिख लिया? Yes. अच्छा. This is molar conductivity. There is something called as conductivity also. Hey beta, there is a difference between molar conductivity and conductivity. सीधी सीधा सा लिख रहा है, इसका लामड़ा इसका K तो अलग होगा. Yes. ठीक है? So what is this K conductivity? ये K क्या है बेटा? This is the conductivity of the solution per centimeter cube volume. A bouncer. Yes. यस. yes sir. आप समझा? The Sir, conductivity of the solution per centimeter cube volume is called as conductivity, and molar conductivity जब ये conditions होगा. सर ये कंडक्टिविटी मेटल के लिए भी वैलिड रहेगा ना, वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला. हाँ, ये उसके लिए भी वैलिड रहेगा, हाँ सर. बिकॉज वॉल्यूम उसका भी निकाल सकते हैं. इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है ना बेटा? यस. Yes. Yes, sir. तो इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब. ए बेटा देख, इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल इतना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा तोड़ सकते हैं इसको. Yes. Yes. तो Yes. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टिविटी है, दैट इज K, एंड मोलर कंडक्टिविटी इज दिस कंडीशन. इन दोनों को हम रिलेट भी करेंगे. ये तुमको समझा लेकिन जो मैंने बताया अभी? यस सर. बच्चों हाँ या Yes, ना, sir. या तो समझा है या फिर नहीं समझा. 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 पाको? मतलब पक्का? पक्का. अरे Yes. समझा मतलब? Yes. yes. So can I say this, that lambda is equal to K upon C? Yes. What is C? Molar Concentration. More constant. What is K? Conductivity per 1 Conductivity centimeter cube. per 1. Conductivity per 1 centimeter cube. यस सर. रिलेशन बता, फिर से नहीं समझा. ये रिलेशन है बेटा, लैम्डा समझा. और K के बीच का रिलेशन है बेटा. नहीं समझा? नहीं समझा? मैं जानता हूँ नहीं समझा. हाँ बोलो बस नहीं समझा. हाँ सर नहीं समझा. नहीं हाँ, समझा. समझा सर, नहीं नहीं. समझा. आप समझा? एटलीस्ट ट्राई करो समझने का. Doesn't understand. No.
मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बट एटलीस्ट ट्राई करो इसको समझने का, फिर मैं आपको आगे का इसका समझाता हूँ। मतलब K टाइम्स वोल्ट, V क्या है सर? K टाइम्स वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वॉल्यूम 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 टोटल वॉल्यूम। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का बात कर रहे हैं। इट इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब। मोलर कंडक्टिविटी is the conductivity of the entire solution. Conductivity per centimeter cube into total number of centimeter cube is going to give me the overall conductivity. यस सर। यस कंडक्टिविटी बताओ ना एक बार फिर से, और K वाला टर्म Tejas, Shubham, सर, K K टर्म is एक बार फिर what? से बताओ ना। K is what? It is the conductivity of the solution per centimeter cube. Per centimeter cube में कितना conductivity, that is K. ओके इस सर, K को मैं total volume से divide करूंगा तो overall conductivity मिलेगा मुझे। नहीं समझा सर, ये वाला नहीं समझा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी इज K। तो अगर मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस टोटल वॉल्यूम का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 100 by K। K इनटू टोटल वॉल्यूम। 100। यस सर। यस शुभम, ओके सर, समझा समझा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। यस तेजस अभी समझा? यस सर, समझा अभी। ओके सर, समझा पक्का? समझा। यस सर यस सर। यस शुभम, तेजस, अक्षय, Yes, sir. पीयूष, उदय, आदित्य, शालिनी, श्वेता, सर एक बार वापस अमन, बताओ। अंजलि। किसको Hello. वापस बताना है? कौन है ये? तो मेरे को सर मेरे को ये भी बेटा, नहीं समझ। देख, तो बोल रहे कब बोलेगी? सर ये स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, वॉइस भी देखो। कुछ फ्रीज नहीं हुआ, सब लोग सुन रहे थे बेटा। यस सर फ्रीज हो रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडक्टिविटी कितना है? K। टोटल वॉल्यूम का कंडक्टिविटी कितना आएगा? वी X। के क्या हो जाएगा टोटल कंडक्टिविटी? K इंटू वी। यस यस What is total conductivity? The molar conductivity. यस Lambda is equal to kV. What is volume? Volume is the reciprocal of concentration. So I can also write this as K upon C. यस Sharon, यस पक्का? यस यस Others, पीयूष डोकले समझा क्या? सर स्क्रीन फ्रीज हो रहा था पर कुछ फ्रीज नहीं हो रहा है यार। अक्षय, हो रहा है सर। यस सर समझा। दर्शना, जॉसलिन, कनाद, यस सर मयूरेश, Yes, निधि, sir. यस सर रिया, साहिल, समीर, श्रेया, Yes, शुभम, सिया, तेजस, वैष्णवी, विकास, यस सर। विशाख। पक्का बच्चों ये समझा? यस सर यस Guys, sir. I am purposely going slow in this chapter because I want you to understand these concepts. केदार समझा बेटा? यस सर अच्छा, ये लिख लिया? नो सर कुछ फ्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉपर तो चल रहा है सब कुछ। नहीं सर नहीं आप सर। इधर से इधर होता है, move हो रहा है रहा था, सर। तो ब्लैक हो सर रहा वो आपके लिए नहीं हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। तो मतलब आप लोग का नेटवर्क का इशू है, मेरा थोड़ी। सर नहीं मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं हुआ सब ना? मेरा नहीं। सर सिग्नल फुल दिखा रहा है। सिग्नल फुल दिखा रहा है तो उस सिग्नल पे चढ़ के उसको हिलाओ बेटा, तो प्रॉपरली चलेगा। नो सर, आपका सिग्नल खराब है। मेरा सिग्नल फुल दिखा रहा है? नहीं चलो दिख ठीक है गाइस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट समझा ना तुम लोग को ये? यस 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 सर। सर तेजस, शुभम, शारन, यस सर। Yes, समझा sir. सर। यस अक्षय, आदित्य, आज Yes, क्लास में sir. मजा आया ना? नो सर आज ऑफलाइन हो क्या आप? हाँ मैं आ रहा हूँ, आज दोपहर को यस आऊंगा। सर। कितने बजे सर? सर 5 फिर बजे कल आते आओ हैं, ना, 5 कल। बजे 5 मैं सर कल एक से 7 बजे। मैं 1 से 5 क्लास में रहूंगा। अगर किसी 5 को बजे। ऑफलाइन डाउट पूछना है तो आ सकता है। सर, केदार exam and, है ना? 5 PM आलोक,
सर आज मिलना जाओ मेरे से, 5 क्या बोल रहे बेटा? मेरे से मिलना। और एक फोटो बनाओगे? अरे भाई मैं क्लास में रहूंगा तो मिलूंगा ही ना। हाँ सर जाना मत। सर कितने बजे? मैं 1 से 5 रहूंगा। सर और एक फोटो बनाओ क्या? सर लेक्चर प्रचेत, रहेगा कि shut up. फ्री रहोगे? अबे मैं मुंह दिखाने थोड़ी आ रहा हूँ, लेक्चर रहेगा मेरे वहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का। सर 11th के लिए आप ऑफलाइन कर रहे हो, 12th के लिए नहीं कर रहे हो, तो पार्शियलिटी हो रही है सर हम लोग के साथ। चलो हम लोग ऑफलाइन डिस्कस करते हैं इस चीज को। बाय गाइस, यस सर, बाय। टाटा। टाटा। सर मैडम सो गए आप? लेक्चर बंद कर दो। सर आप भी कर सकते। ए मैं भी कर सकता हूँ, मैं को होस्ट हूँ ना। यस यस सर। सर कोस्ट नहीं होता। Yes. को होस्ट बंद नहीं कर सकता है। यस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर सकता हूँ।